Students, today that we will deal another chapter of the animal physiology, that is the blood fluid and the circulation. Before कि हम body fluid and circulation का सारा कुछ पढ़ेंगे, let we discuss the first topic of this chapter, that is the body fluid and circulation. And the first topic is about the vascular connective tissue. Vascular connective tissue. Vascular connective tissue. What is the vascular connective tissue? It is the tissue which is responsible for transport in the body of an animals. So मैंने बोला कि जो फर्स्ट टॉपिक है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, दैट इज अ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. अगर हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात अगर हम करेंगे, मैं बोल रहा हूँ ये वो टिश्यू है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? Transportation in the body of animals. Like transportation of what? Transportation of carbon dioxide, transportations of the nutrients, got it? Yeah, transportations of the waste, yeah, transportations of carbon dioxide, transportation of nutrients, transportation of waste, transportations of hormones, got it, etc. So अगर हम देखेंगे वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स. अगर हम देखेंगे ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक्चुअली दिस टिश्यू इज मेनली मेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट या हार्मोन्स एटसेट्रा. गॉट इट? सो अगर हम इस टिश्यू की बात करेंगे, इट इज द टिश्यू विच फ्लोज इन द वेसल्स. क्या ये वो टिश्यू है जो फ्लो किस में होता है? वेसल्स. या तो ये ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स. अगर ब्लड वेसल्स में ये फ्लो होता है तो देन वी कॉल इट द ब्लड. So blood is a vascular connective tissue which flows in the blood vessels. That's why we call it a vascular connective tissue. क्योंकि vascular connective tissue इसलिए बोलता है क्योंकि ये vessels में किस टाइप ऑफ वेसल, लाइक ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे ब्लड फ्लो होता है. इसी तरीके से अगर हम सेकंड वन की बात करेंगे, दैट इज द लिम्फेटिक वेसल्स. आया समझ में? लिम्फेटिक वेसल्स. अगर हम लिम्फेटिक वेसल्स की बात करेंगे इसमें लिम्फ जाता है. सो लिम्फ अगेन इट इज अ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड इट इज आल्सो what we call a vascular connective tissue. So blood and lymph, it is a vascular connective tissue because it flows in the vessels. What type of vessels? Lymphatic vessels and blood vessels. Got it? So अगर हम देखेंगे vascular connective tissue वो टिश्यू होता है which is mainly responsible for the transportation in the body of an animals. Like what type of transportation? That which helps blood as well as the lymph. It helps us in the carbon dioxide, transportation of carbon dioxide, nutrients, wastes, hormones, and etc. Got it? So first that this vascular connective tissue, that there are two types of the vascular connective tissue. अगर हम इस vascular connective tissue की बात करेंगे इसमें दो टाइप्स आते हैं. कितने टाइप्स आते हैं? दो टाइप्स आते हैं. The first one is that is the blood. Now what are that is the types of vascular connective tissue. What are the types of vascular connective tissue? The first one is that is the blood. पहला आता है blood. And the second one is that is the lymph and blood. So both blood as well as the lymph, it is a vascular connective tissue. Why? Because it flows in the vessels. Like blood, it flows in the blood vessels like arteries, capillaries, got it? या veins. इसी तरीके से अगर हम lymph देखेंगे ये भी vascular connective tissue because it also flows in the vessels like lymphatic vessels. आया समझ में? So the first topic is about the first vascular connective tissue, that is the blood. Now what is the blood and what is the lymph? Got it? So blood की अगर हम बात करेंगे, before that we study about the blood. So first you should know that the study of blood is called as a hematology. What do we call the hematology? What is hematology? It is a study of the blood. Study of the blood is called as a hematology.
आया समझ में? एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड hemopoiesis. So what is the formation of blood is called as, we call is the what we call say hemopoiesis. हीमोपोइसिस, ब्लड के बनने को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं. कहां से बनता है हीमोपोइसिस? हीमो का मतलब होता है ब्लड, एंड पोइसिस दैट इज अ फॉर्मेशन दैट इट ऑकर्स फ्रॉम द बोन मैरो. बोन मैरो, तो बोन मैरो से ब्लड बनता है, दैट्स व्हाई वी कॉल द हीमोपोइसिस. सो ब्लड के स्टडी को हम बोलते हैं हेमाटोलॉजी, और इसके बनने को हम हीमोपोइसिस बोलते हैं, क्योंकि वी डील विद द ब्लड. मैंने आपको बोला वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के दो टाइप्स है, एक तो है ब्लड, दूसरा लिम्फ है. ब्लड इट इज अ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ इट इज अ वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. व्हाई? बिकॉज इट फ्लोज इन द वेसल्स. सो व्हाट इज द ब्लड? द स्टडी ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एज अ हेमाटोलॉजी, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज अ हीमोपोइसिस. ये कहां से होता है? ये होता है बोन मैरो से. सो व्हाट इज ब्लड? अगर हम देखेंगे ब्लड क्या है, व्हाट इज द ब्लड? ब्लड इट इज अ रेड, ये रेड होता है. क्या होता है? रेड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ये रेड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. इट इज अ रेड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ये रेड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है. रेड क्यों है मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि आगे हमें पढ़ना ही है व्हाई द ब्लड इट इज रेड. मैं आगे बोलूंगा व्हाई ब्लड इज रेड. एक्चुअली इट ऑकर्स ड्यू टू द हीमोग्लोबिन. गॉट इट? सो ब्लड का अगर हम पीएच देखेंगे, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इट इज 7.4. क्या है? 7.4. दैट इज अ स्लाइटली अल्कलाइन. It is slightly alkaline. What it is? It is a slightly alkaline. It is slightly alkaline in nature. अगर हम वेट देखेंगे, ब्लड का वेट, जैसे कि एक इंसान है, इसका वेट अगर हम देखेंगे 70-80 kg, इसमें कितना ब्लड उसका मतलब कॉन्स्टिट्यूट करता है वेट का. अगर हम देखेंगे वेट ऑफ द ब्लड, दैट इज इट इज 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट. 7 to 8% ऑफ द बॉडी वेट का मतलब होता है, अगर हम देखेंगे ब्लड का ही इतना 7 to 8% बॉडी वेट का होता है. इसकी विस्कोसिटी अगर हम देखेंगे, व्हाट इज द विस्कोसिटी? विस्कोसिटी अगर हम ब्लड की देखेंगे, व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड? इट इज 5 times more, 5 times more, 5 times more viscous than, 5 times more viscous than distilled water, then distilled water, then distilled water, distilled water, distilled water. So it is highly viscous as compared to that of the water. It is the highly viscous. अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे ना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड? इट इज 5 to 6 लीटर्स. अगर हम देखेंगे कितना ये है वॉल्यूम ब्लड का, 5 to 6 लीटर्स इन मेल्स में 5 to 6 लीटर्स होते हैं. अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे 4 to 5 लीटर्स. अगर हम देखेंगे 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल्स. आया समझ में? तो अगर हम वॉल्यूम देखेंगे ब्लड का, 5 to 6 लीटर्स इन मेल्स एंड 4 to 5 लीटर्स इन फीमेल्स. सो अगर हम देखेंगे इन रियल सेंस, क्या ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है? अगर हम देखेंगे ब्लड इज एक्चुअली इट्स अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू. हम इसको कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं बोल सकते हैं, ट्रू कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं बोल सकते, सॉरी ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोल सकते, इट्स अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू. क्यों बोलेंगे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू? इसमें बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई इट इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू. द फर्स्ट थिंग इज दैट सेल्स जो हम देखते हैं, पहले जो हम सेल्स देखते हैं, जो ब्लड में हम सेल्स देखते हैं, इनको कोई पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है. नो पावर ऑफ डिवीजन, नो पावर ऑफ डिवीजन. ये सेल्स क्या है? ये डिवाइड नहीं होते और सेल्स बनाते हैं. एक्चुअली जो सेल्स आते हैं वो कहां से आते हैं? बोन मैरो से आते हैं. जो सेल्स ब्लड में एक्चुअली होते हैं, ब्लड वेसल्स में, फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल में सेल है, ये डिवाइड नहीं हो जाएंगे और बाकी सेल्स बनाएंगे. एक्चुअली अगर हम इसका ओरिजिन देखेंगे, ये कहां से इसका ओरिजिन? ये बोन मैरो से है. सो इट हैज नो पावर ऑफ डिवीजन. क्या बोलेंगे? नो पावर ऑफ डिवीजन. अगर इसका डिवीजन का ये पावर ऑफ डिवीजन है ही नहीं. ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो ट्रू कनेक्टिव टिश्यू होता है, उनके सेल्स को पावर ऑफ डिवीजन होता है. मगर जो ब्लड का जो ये सेल्स होते हैं, दैट दे हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, दैट द सेल्स हैव नो पावर, दैट द सेल्स ऑफ द ब्लड हैज नो पावर ऑफ डिवीजन. द सेकंड वन इज दैट फाइबर्स और कंप्लीटली एब्सेंट इन ब्लड. फाइबर्स तो प्रेजेंट होते ही नहीं है ब्लड में. फाइबर्स और completely absent in completely absent in blood. Got it? कौन से फाइबर सर? लाइक वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, वो तो वाइट फाइबर नहीं होता है, येलो फाइबर नहीं होता है, इलास्टिन फाइबर्स नहीं होते हैं, तो फाइबर्स भी नहीं होते हैं.
गॉट इट। जो हम अगर हम कंपैरिजन देखेंगे दूसरे कनेक्टिव टिश्यू का, अगर हम ब्लड का कंपैरिजन देखेंगे दूसरे टिश्यूज के साथ, लाइक एडिपोज टिश्यू, प्रॉपर टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, उनमें ये होता है, उनमें सेल्स होता है, उनको पावर ऑफ डिवीजन होता है, उनमें फाइबर्स भी होता है। मगर अगर हम ब्लड की बात करेंगे, इनमें क्या होता है, फाइबर्स तो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं ब्लड में। द थर्ड वन इज दैट इज व्हाई वी कॉल that the blood is false connective tissue. The third thing is that is the matrix of blood is produced and synthesized by liver. जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कहां से सिंथेसाइज होता है? ये ब्लड से नहीं होता है सिंथेसाइज, इट गेट सिंथेसाइज्ड बाय लिवर। कहां से होता है? लिवर से होता है। और कहां से होता है? लिम्फॉइड ऑर्गन से होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन से। आया समझ में? सो अगर हम देखेंगे दीज थ्री कंडीशंस, ये जो तीन कंडीशन मैंने यहां पे लिखी है, दैट्स व्हाई ऑन दीज थ्री क्राइटेरियाज दैट वी कॉल दैट द ब्लड इट इज द फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स जो प्लाज्मा होता है, मैट्रिक्स ये सिंथेसाइज तो लिवर में होता है और लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है, यहां पे तो नहीं होता है, जो वेसल्स में तो नहीं होता है। गॉट इट? सो आपको स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, जो ब्लड है, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज अ हेमाटोलॉजी, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज अ hemopoiesis. What is the blood? It is a red liquid connective tissue. It is pH is 7.4. It is weight is 7 to 8% of the body weight. It is viscosity is 5 times more than that of the distilled water. It is volume is 5 to 6 liters. Got it? अगर हम फीमेल्स की बात करेंगे 4 to 5 liters in females. जो ब्लड है, it is a false connective tissue. तो मैंने ये तीन रीजंस यहाँ पे लिखे। Now what is the composition of the blood? What is the composition of the blood? ब्लड की क्या composition है?